Hello students, I welcome you all once again. In previous lecture we were discussing about quantity equation. So based upon that, just try one numerical. The numerical is like this. This is the pipe in which fluid is flowing. The fluid is steady and incompressible. So this is inlet from where water enters the pipe, and these two are outlet from where the water exit from the pipe. Say this is 1, this is 2, and this is 3. So what is given in the numerical is diameter of pipe 1 is 30 centimeter, velocity in pipe 1 is 2.5 meter per second, velocity in pipe 2 is 2 meter per second, diameter in pipe 2 is 20 centimeter, D3 is equal to 15 centimeter, and V3 is not known. So in this numerical we have to find discharge Q1, means discharge in this pipe Q1, what is the value of Q1, and we have to find the velocity in pipe 3, that is V3. So let's see how we will do this numerical. Since this is pipe, so the cross section will be circular, and for circular cross section we know area is equal to pi by 4 d square. So these are the conditions given, and so A1 is equal to pi by 4, A1 is equal to pi by 4 d1 square. So A1 is 0.07065, we have calculated this. Similarly A2 will be 0.0314 and A3 will be 0.01766. Okay, so we know if flow is steady and incompressible, then Q is equal to A into V, यानी कि डिस्चार्ज की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी. In pipe 1 area is given and velocity is also given, so Q1 will be A1 into V1, which is 0.1766 meter cube per second. So we will calculate Q1 by this equation. So now let's solve the velocity of pipe 3. It means you have to calculate the velocity in pipe number 3. So we know quantity equation is, it states that for steady and incompressible flow, A1 V1 is equal to A2 V2, or Q1 Q in is equal to Q out. Now here in is 1 and out, it means water can exit from the pipe in two ways, from 2 also and from 3 also. So Q in will be Q1 and Q out will be Q2 plus Q3. So we can write quantity equation here like this: Q1 is equal to Q2 plus Q3. Q1 will be 0.71766, Q2 will be A2 V2, A2 is known, V2 is also known, and Q3 will be A3 V3. We know A3, so we will we know A3, and we will calculate the value of V3 using this equation. So V3 will come out to be 6.44 meter per second. So this is the numerical based on quantity equation. I think you all get it. So now next move towards our next topic, which is Bernoulli's theorem. So before discussing about Bernoulli's theorem, let me tell you something about energy. So from physics we know energy, जिसको हम लोग हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, वो क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू हैव एनर्जी. यानी किसी भी वस्तु में अगर कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको क्या कहते हैं कि इसके पास एनर्जी है. अब एनर्जी को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है काइनेटिक एनर्जी. वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो हम लोग कहते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv². सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि h हाइट की ऊंचाई पे रखा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है m इंटू जी इंटू एच. सिमिलरली फ्लो एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये एनर्जी हम लोग ने पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स में, कि जब भी कोई मास एक सिस्टम में एक पॉइंट पे एंटर करता है वो दूसरे पॉइंट पे लीव करता है, तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम. और उस केस में हम लोगों ने एक चीज़ देखी है, वहाँ पे जो एनर्जी होती है जो इस लिक्विड को पुश करती है इनसाइड एंड पुश करती है आउटसाइड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर एनर्जी. और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू
V, जहाँ पे P क्या है प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम। तो P1 V1 हो जाएगा प्रेशर व्हेन फ्लूइड इज एंटरिंग एंड V1 हो जाएगा उसका वॉल्यूम। P2 क्या हो जाएगा प्रेशर व्हेन फ्लूइड इज लीविंग द सिस्टम एंड V2 क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। Similarly, we know there are thermal energy, electrical energy, magnetic energy, chemical energy and nuclear energy. So we will not go into detail in thermal energy, electrical energy because these are not our concept, not related to for mechanical engineers. So before going further, let's see what are the system क्या होते हैं थर्मो में। तो सिस्टम हमको पता है कि क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ जो एनर्जी होती है वो हीट और वर्क के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, मास के फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। जबकि ओपन सिस्टम में क्या होता है, हीट जो है एनर्जी जो है हमारी हीट के टर्म में भी ट्रांसफ़र होती है, वर्क के टर्म में भी ट्रांसफ़र होती है और मास के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र होती है। यानी हीट कैन ट्रांसफ़र इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क एंड मास। इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम नो एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि ना हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ना वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मास के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। सो वन स्पेशल थिंग अबाउट एनर्जी इज़ दैट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी, इन तीनों एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यानी इन तीनों एनर्जी को हम लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क कम्प्लीटली एंड डायरेक्टली बाय एन आइडियल मैकेनिकल डिवाइस। यानी कि ये वो एनर्जी है जो कि मैकेनिकल वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाती है विदाउट एनी लॉस इफ़ वी यूज़ एन आइडियल डिवाइस विच इज़ से आइडियल टर्बाइन। यानी कि हम जिस एनर्जी को अगर हम टोटली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं विथ सर्टेन आइडियल डिवाइस, तो उस तरह की एनर्जी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग टोटली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रेशर एनर्जी को हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हैं इफ़ वी यूज़ एन आइडियल टर्बाइन। एक यहाँ पे नोट करने वाली बात ये, हीट और थर्मल एनर्जी जो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, ये मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हीट को हम लोग वर्क में डायरेक्टली एंड कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टली का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोगों को कोई एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है अगर हमको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये हम लोगों ने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में देखा है इन थर्मोडायनेमिक्स। और कम्प्लीटली भी कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता है अगर हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी इज़ लॉस टू द सराउंडिंग, यानी कुछ उसकी जो होती है वो सराउंडिंग में लॉस होगी। 100% कन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑल दिस इज़ अबाउट एनर्जी, कि एनर्जी को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं और सिस्टम में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है, वर्क ट्रांसफ़र होता है और मास ट्रांसफ़र होता है किस तरह के सिस्टम में। तो अब जहाँ तक हमारा सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स है, इसमें हम लोगों के पास जो सिस्टम होता है वो मोस्टली क्या होता है, हमारा ओपन सिस्टम होता है। तो ओपन सिस्टम की प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है क्या होती है, कि ओपन सिस्टम में सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होगा, वर्क ट्रांसफ़र होगा और मास ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे जो है ये फ्लो एनर्जी भी आती है, जिसको हम लोग F बराबर P इंटू वी लिखते हैं। F बराबर P इंटू वी, इट इज़ फ्लो एनर्जी एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ओपन सिस्टम। सो लेट्स सी what is Bernoulli's theorem. So Bernoulli's theorem is given by mathematician Daniel Bernoulli in the year 1738, and this theorem is actually based on conservation of energy. ये जो हमारी इक्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जैसे कि क्वांटिटेटिव इक्वेशन क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड थी, उसी तरह बर्नौली इक्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और वो कौन सी एनर्जी है देखते हैं हम लोग। तो इसका स्टेटमेंट अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इसका प्रूफ और इसकी एप्लीकेशन वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग
काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्टैटिक एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा प्लस फ्लो वर्क और फ्लो एनर्जी और प्रेशर एनर्जी यानी कि दाब ऊर्जा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौली थ्योरम, यानी काइनेटिक एनर्जी स्टैटिक एनर्जी या प्लस प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को पता है क्या होती है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को क्या है पता है क्या होती है, mgh। और फ्लो एनर्जी हम लोगों को पता है क्या होती है, p इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, m क्या है हमारा मास, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। वेलोसिटी उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अगर उसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल। यानी कि ये हमारी क्या है, एनर्जी, और एनर्जी की मात्रा हमारी क्या होती है, जूल। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, mgh। m क्या है मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। सबकी यूनिट मैंने लिख दी है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, ये ओवरऑल आ जाएगा फिर से न्यूटन मीटर यानी कि जूल। उसी तरह ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर यानी कि जूल। तो ये क्या है, हमारी सारी एनर्जी का सम है, और हमको पता है सब सम हम तभी कर सकते हैं जब सबका मात्रक जो है सेम हो, और यहाँ पे सबका मात्रक क्या है, जूल। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हमारा क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसका प्रूफ हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यूनिट ऑफ वर्क हम लोगों को पता है क्या होती है, वर्क के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्क क्या होती है, F इंटू डी। एनर्जी क्या होती है, जूल, यानी जूल जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था। क्लियर। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बर्नौली इक्वेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन जो है उसको हम लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने भी दिखाई थी, इसी को अगर हम लोग मास से डिवाइड कर दें, यानी कि इफ़ वी डिवाइड बाय मास, तो ये क्या हो जाएगी, पर यूनिट मास। तो उसमें ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी v²/2 प्लस GH प्लस p/ρ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम, क्योंकि हम लोगों ने मास से डिवाइड कर दिया है इसलिए पर किलोग्राम। अगर जूल में कभी कभी वैल्यू ना देके किलो जूल में देते हो तो ये हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम। अगर इसी ऊपर वाली इक्वेशन को, यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग जो है वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, इफ़ यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो ये क्या है, रो डेंसिटी। इसी तरह ये हो जाएगा रो जी एच प्लस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। क्लियर। इसका जो तीसरा तरीका है लिखने का वो है इफ़ यू डिवाइड बाय एम जी, यानी इसको हम लोग अगर मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दें तब क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा ये हाफ v² बाई जी प्लस एच प्लस पी बाई रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हेड। हेड का मतलब होता है एच, और वो होता है उसकी यूनिट मीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सारी यूनिट जो है ये किस में है, मीटर में है। मीटर, मीटर एंड मीटर। तो ये तीन तरीके हैं बर्नौली इक्वेशन को लिखने के, जो कि मैंने समराइज़ कर दिया है। उसमें क्या है, पहला पर यूनिट मास, अगर हम मास से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगी बर्नौली इक्वेशन। अगर हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी ये। अगर हम उसको हेड से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी p/ρg प्लस v²/2g प्लस h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जनरली इन्हीं दोनों इक्वेशन को मोस्टली देखते हैं। और ये हेड जो, ये लास्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 3, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हेड है इसके फॉर्म में हम लोग ज़्यादातर बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये एक्चुअली प्रूफ कैसे हुई है, प्लस इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन पाया जाता है। थैंक यू।